Hello students, so today we are going to do another interesting poem by Ted Hughes, Hawk Roosting. Now herein, hawk as we all know is a bird, and roosting here is place where birds can repose. They can rest or they can sleep. So पक्षियों का बसेरा जहाँ पे वो विश्राम करते हैं. Now discussing certain facts related to these hawks. They are from the family of eagles, secretary birds, kites and the old vultures. So they are flesh-eating birds. They eat the flesh of other smaller birds and animals. Now they are even classified as raptors. Raptors जो होते हैं, they are a bird of prey. Like eagle हो गए, hawks हो गए. So they prey on other smaller birds and animals. In this very image you can see the way it is sitting. It shows a sense of supremacy, a sense of power, a sense of authority, and from the very look it reflects, it is also there is hint of arrogance. जब आप इस बर्ड को देखते हो जिस तरह से बर्ड बैठा हुआ है तो उसमें एक सेंस ऑफ सुप्रीमेसी का पता चलता है, अथॉरिटी का रिफ्लेक्शन आता है. जैसे ये बर्ड अपने प्रे को देखता है या किसी भी चीज़ को ये विजुलाइज करता है या उसके जो बैठने का तरीका है उसमें भी एक अथॉरिटी का. नाउ हेयर इन वी आर प्रोसीडिंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड. टेड ह्यूग्स is consistently described as one of the 20th century's greatest English poets. टेड ह्यूग्स जो थे वो 20th सेंचुरी में और 20th सेंचुरी के जो ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोइट्स में उनका नाम गिना जाता था. 1984 में ही वॉज अपॉइंटेड इंग्लैंड्स पोएट लॉरिएट. तो उनकी जो वर्क्स हैं उनको अप्रिशिएट किया गया. उनको एक 20th सेंचुरी के जो सबसे नोन पोइट्स हैं, जो ग्रेटेस्ट पोइट्स थे इंग्लिश के, उनमें उनका नाम जो था वो शुमार था. Hughes is what some have called a nature poet. So since Hughes he spent his childhood doing activities like hunting, swimming, okay. So herein he had even seen he was a keen countryman, okay. He had gone through the hardships of the country life. So he amalgamated all these things in his writings and they can be visualized easily in his works. So उनके जो काम थे, उनकी जो परवरिश थी, उनकी परवरिश नेचर के बहुत करीब हुई थी. तो वो नेचुरल जो नेचर के बहुत करीब रहे जब वो छोटे थे. फॉर एग्ज़ाम्पल वो हंटिंग करते थे, स्विमिंग एंड ऑल द एक्स्ट्रा all the activities that would involve physical exertion, these kinds of activities. तो जो उनका जुड़ाव था नेचर के साथ वो उनके काम में भी दिखता है. ओके, सो कमिंग टू दिस पोएम. Now herein I would be discussing few important vital points related with the poem before I initiate with the stanza reading. Now, Hawk Roosting is a poem that puts the reader into the imagined mind of a hawk. Now, the hawk herein is about to rest up for the day. So, it was about to repose for the day, and it's a monologue of a raptor. Monologue means a long speech by one person. एक पर्सन जो है वो लॉन्ग स्पीचेस देता है. जैसे कि कोई प्ले होता है उसमें लॉन्ग स्पीच जब चलती है किसी भी एक पर्सन की, तो हम क्या करते हैं, हम बोर हो जाते हैं. वी स्टार्ट यॉर्निंग. एट टाइम्स इट हैपन्स. अगर आपने थिएटर में प्लेज देखे होंगे तो डेफिनेटली यू मस्ट बी एक्नॉलेज विद दिस फैक्ट.
नाउ द रैप्टर हेयर इन इज गिवन द पावर ऑफ ह्यूमन थिंकिंग। जो रैप्टर है उसे पावर मिली है किसकी? ह्यूमन थिंकिंग की, राइट। सो हेयर इन पर्सोनिफिकेशन जो है वो की गई है। पर्सोनिफिकेशन, वो जो पर्सोनिफिकेशन होता है जब किसी ऑब्जेक्ट या फीलिंग को हम डिस्क्राइब करते हैं एज इफ इट वर अ पर्सन। हम फॉर एग्जाम्पल लाइक to be an example in human form of a particular quality, ठीक है। so the bird's instinct is to hunt down quarry। query क्या होती है? query is a place where sand, stones, etc. these kinds of things are seen। तो queries में उन्हें अपना prey मिलता है इन hawks को। फॉर एग्ज़ाम्पल रैबिट्स हो गए, तो उनका जो प्रे करने का जो तरीका है वो है कि वो क्वेरीज में जनरली इन अपने जो शिकार है वो उन्हें सर्च करती है। एट इट लिव्स बाय द डेथ ऑफ द अदर क्रीचर्स, दैट इज इट किल्स इन ऑर्डर टू सर्वाइव। सो हेयर इन अ वेरी हार्ड फैक्ट इज शेयर विद द रीडर्स दैट ये जो बर्ड है इट लिव्स बाय killing other creatures. So for its own survival, it kills other creatures. So there is no room for sparing any creature's life, because it's always said that survival of the fittest, जो fit होगा वही survive कर सकता है। In the competitive world today also, what we call it as a survival of the fittest। आज जो भाग दौड़ का जो टाइम है उसमें लोग थ्रोट कट कंपटीशन में बिलीव करते हैं। थ्रोट कट कंपटीशन मीन्स एक दूसरे को वो पीछे छोड़ना चाहते हैं, ओके, इरिस्पेक्टिव कि किसी की फीलिंग्स हर्ट हो रही हैं कि नहीं। सो इसी तरह ये भी जो बर्ड है इसके ऊपर इस चीज़ का असर नहीं पड़ता कि ये किसी जीव को मार के अपना ये पेट भरता है। Now coming to the first stanza here, this stanza I am going to narrate to you here. Now it says, I sit in the top of the wood, my eyes closed, in action, no falsifying dream, between my hooked head and hooked feet, or I sleep, rehearse perfect kills and eat। So very first line you can see over here, I का usage है, so it's written in first person, okay। The hawk controls the whole narration। जो है ये फर्स्ट पर्सन में लिखा गया है, हॉक ही यहाँ पे जो है वो जो थॉट प्रोसेस जो चल रहा है वो हॉक के अंदर का ही थॉट प्रोसेस है, ओके। और कोई नहीं है बल्कि हॉक का ही कंट्रोल है पूरी नरेशन पे। द हॉक इज सिटिंग एट द टॉप मोस्ट पोजिशन, टॉप ऑफ द वुड। तो वुड्स में वो हॉक बैठा हुआ है, वहाँ पे वुड्स में भी सबसे टॉप मोस्ट पोजिशन उसने ली हुई है। सो इट हाईली रिफ्लेक्ट्स एन इन्फ्लुएंसिंग एंड अ डोमिनेटिंग पोजिशन। In the image also, in the slide number second, you must have visualized it was resting on a wood. So the way it was sitting, it reflected arrogance। जिस तरह से वो हॉक बैठा हुआ था उसका एक इन्फ्लुएंसिंग, एक डोमिनेटिंग पोजीशन दिखती है। तो अल्टीमेटली उसमें कुछ ख़ास बात है और वो ख़ास बात ऑथर के अकॉर्डिंग उस हॉक को मालूम है, एंड डेफिनेटली वो जो उसमें एक सुप्रीमेसी आती है इस चीज़ की वजह से, तो वो एरोगेंस भी
वो एक एरोगेंस स्पेक्ट्रा के अंदर भी आ जाता है. नाउ व्हाट हैपन्स इज, नेक्स्ट here it says no falsifying dream. Falsifying dream are of no worth since the hawk does not need fake dreams. Okay, since its reality is absolute and perfect. तो ये जो हॉक है उसे फेक ड्रीम्स की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज उसकी जो अपनी रियलिटी है वो एब्सोल्यूट है और परफेक्ट है. ओके, the way it preys, the way it catches its prey, it's totally absolute. Okay. Now the hawk is shown in a way of supremacy. Hooked here means between my hooked head and hooked feet. Hooked का जो use किया गया है, it showcases hawk's potential for violence. Hooked, that is, it reflects the savage side of the creature. जब भी कोई प्रे कैच करता है हॉक, तो वो कैसे उसे कैच करता है, ठीक है, अपने जो पंजे हैं उनको पूरी तरह से उसके अंदर, जिसे कहते हैं ना, वो गाड़ देता है पूरी तरह से जानवर के अंदर. उसकी सांस की नली जो है वो उसे पूरी तरह से दबाकर उसे मारने की कोशिश करता है. ओके, सो हेयर इन उसका जो एक विकराल रूप है, जो बहुत अच्छा रूप नहीं है, वो हमें दिख रहा है इन वर्ड्स के यूजेज से, कि वो वॉयलेंस भी करता है. ओके, नाउ हुक्स कैन बी यूज टू पियर्स समथिंग और कॉज वूंड्स कॉज कर सकता है. हैंस इट रिफ्लेक्ट्स हिज पोटेंशियल फॉर वॉयलेंस. सो यहाँ पे जो वॉयलेंस है, हमें वॉयलेंस का एक सिनेरियो समझ में आ रहा है बॉटम लाइन से. सो इट परफेक्ट किल्स and eat. So herein जो उसके प्रे करने की टेक्निक है उसे बिल्कुल परफेक्ट बताया गया है. सो बॉटम लाइन से इज दैट द हॉक बिहेव्स लाइक ए डिक्टेटर हु डिराइव्स प्रेशर फ्रॉम किलिंग. तो ये जो हॉक है वो एक तरह से डिक्टेटर है, डिक्टेटर के तौर पे उसे दिखाया गया है, जिससे कि मज़ा आता है किलिंग्स करके. नाउ कमिंग टू हेयर यू कैन सी फीट एंड ईट. ये दोनों वर्ड्स यूज़ किए गए हैं. दे आर राइमिंग कपलेट. ये क्या दिखाते हैं? द प्रिसीजन इन किलिंग. ओके, नाउ कमिंग टू स्टैंजा नंबर 2. स्टैंजा नंबर 2 पे चलते हैं. Here in this stanza, convenience and the convenience of the high trees, the air's buoyancy, and the sun's ray are of advantage to me, and the earth's face upward for my inspection. The convenience of the high trees. See all the things. ये जो ऑथर है, जब वो हंटिंग के लिए जाते हैं तो वो इन चीज़ों को देखते थे. जब वो छोटे होते थे तो वो इन चीज़ों को बहुत ध्यान से देखते थे कि एक हॉक कैसे बैठा है, वो कहाँ पे बैठा है, उसने क्या पोजीशनिंग ली है कंपेयर टू अदर एनिमल्स एंड बर्ड्स, क्या उसकी एक अपनी कोई अलग सुप्रीम क्लास है. सो डेफिनेटली इन चीज़ों को उन्होंने बहुत बारीक तरीके से नोटिस किया. दैट्स वाई he has come up with a such kind of poem where we
are where we come across the very hard fact realities that are somehow encased in the nature. Now, the convenience of the high trees. Convenience और advantage जो words हैं herein, convenience and advantage, ये words suggest करते हैं world has been designed just to measure up to the comfort zone of the hawk. Okay, for जो convenience and advantage एक ऐसे तरह के words यूज़ जो किए हैं ऑथर ने, वो ये दिखाते हैं कि ये वर्ड जो है वो सारा वो इस तरह से डिज़ाइन किया गया है ताकि जो कंफर्ट जोन हॉक का है उसे मेजर किया जा सके। ये दुनिया जो है उसका कंफर्ट जोन और जो हॉक का कंफर्ट जोन है उसके बारे में बात की गई है। सो what happens is it says that earth face upwards for my herein in the bottom line the earth's face upward for my inspection। यहाँ पे इस लाइन में अर्थ जो है उसे पर्सोनिफाई किया गया है। by looking upward it suggests that the hawk is like alive. Okay, so herein personification of the earth has been done। personification मैंने आपको बताया क्या होता है। now by looking upwards it suggests that the hawk is alive in both literal sense में भी और hierarchically भी। okay, the hawk is ruthlessly violent। so the air's buoyancy and the sun's ray, यहाँ पे जो बिफोर दैट आई जस्ट टेल यू इंस्पेक्शन का क्या मतलब है। यहाँ पे इंस्पेक्शन व्हाट हैपन्स इज, इंस्पेक्शन कौन करता है। अगर कोई कम्युनिटी रिजाइड करती है कहीं पे तो इंस्पेक्शन के लिए कुछ ऑफिसर्स लगाए जाते हैं। इंस्पेक्टर्स के पास ऐसी कुछ पावर होती है जो कि लेमैन जो है आम लोग हैं उनको वो पनिश कर सकते हैं अपने जजमेंट के अकॉर्डिंग। अगर उन्हें सही या गलत जो भी उनका जजमेंट है वो उसके अकॉर्डिंग पनिश कर सकते हैं। ओके, तो उनकी अथॉरिटी जो है वो सुप्रीम होती है। सो इसलिए लोग उनसे डर के रहते हैं। तो यहाँ पे जो इंस्पेक्शन है इसी सेंस में यूज़ किया गया है दैट हैविंग पावर ओवर थिंग्स दैट दे इंस्पेक्ट। तो हॉक्स भी हैं, उनकी एक अलग ही सुप्रीमेसी होती है ऑन द थिंग्स दैट दे आर इंस्पेक्टिंग। ओके, जो अर्थ है वो ऐसे नीचे से ऐसे लग रहा है कि वो ऊपर की तरफ देख रही है। ओके, और ये लोग ये जो हॉक्स हैं ये जो हॉक्स हैं ये एक तरह से इंस्पेक्ट कर रहे हैं पूरी अर्थ को। पूरा जो एरिया इनके सामने जितना भी विजन जितनी भी दूर इनकी जाती है वो उनके सामने सारा जितना भी एरिया है उसे इंस्पेक्ट कर रहे हैं। अब जजमेंट का डे किसका आएगा वो डिपेंड करता है इन हॉक्स के ऊपर कि वो किसे अपना प्रे बनाते हैं, किसके ऊपर फीड करते हैं। सो एयर्स बॉयंसी इज़ जो जब ये हवा में अब फ्लाइट लेते हैं तो हवा भी जो है वो इनको फ्लोट करके रखती है। सो here one important point I would like to discuss with you that it is always said that to have a bird's eye perspective. Bird's eye perspective। ठीक है बच्चे, बर्ड्स आई पर्सपेक्टिव होना क्या होता है। बर्ड्स आई पर्सपेक्टिव वन मोमेंट।
bird's eye perspective. अब अगर आप किसी भी चीज़ को एक बर्ड्स के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो वो उसका जो दायरा है वो काफ़ी बड़ा होगा. इट्स गोइंग टू बी वाइड स्प्रेड. सो योर पर्सपेक्टिव इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी वाइड स्प्रेड. फॉर एग्ज़ाम्पल, जो गवर्नमेंट है वो बर्ड्स आई पर्सपेक्टिव रखती है टुवर्ड्स गर्ल्स एजुकेशन. तो उसका जो एक पर्सपेक्टिव है वो नैरो नहीं है. ओके अगर नैरो होगा किसी भी लाइक गर्ल्स एजुकेशन के प्रति किसी का भी पर्सपेक्टिव नैरो होगा तो हम क्या कहेंगे? वी आर गोइंग टू से दैट द पर्सन कीप्स अ worm's eye perspective. ठीक है बच्चे. worm's eye perspective मीन्स worm क्या होता है? कीड़ा. ओके कीड़े का नज़रिया क्या होता है? छोटा होता है उसका दायरा देखने का. ठीक है बहुत ही सिमटा हुआ सा होता है. वो सामने देखता है और बस अपने आसपास, और उसे कुछ नहीं दिखता, ऊपर का ना बहुत दूर का, कुछ ऐसा नहीं दिखता. तो उसी तरह से इफ़ यू आर यूजिंग दीज टर्मिनोलॉजीज you can use them in your language. Okay so this was just for your general knowledge. Now herein we have done stanza number 2. Let's come to stanza number 3. Stanza number 3 में बच्चे it says, my feet are locked upon the rough bark. It took the whole of creation to produce my foot, my each feather. How I now hold creation is my foot. So see here, lot of arrogance is being reflected from this very stanza. इस stanza से हमें हॉक का जो arrogance है उसके बारे में पता चलता है. Locked here means कि जो हॉक है वो एक बहुत ही स्टर्डी फॉर्म में दिख रहा है. ओके जैसे कि हम जो लॉक्स होते हैं वो सिक्योरिटी को टाइटन करते हैं. ओके तो यहाँ पे हॉक जो है वो भी एक स्टर्डी फॉर्म में दिख रहा है. अपॉन द रफ बार्क. ओके image of sturdiness here is showcased. Bark here it emphasizes the hawk's firm almost harsh grip. तो यहाँ पे जो है उसकी जो ग्रिप है वो एकदम बहुत ही ज़्यादा हार्श है और फर्म भी है. ओके माई फीट आर लॉक्ड अपॉन द रफ बार. तो वो इतने स्टर्डीनेस के साथ, इतने मज़बूती से वो रफ बार के ऊपर उसने जो है उसने अपनी होल्ड पकड़ बनाई हुई है कि उसकी ग्रिप सिर्फ स्ट्रॉन्ग ही नहीं बल्कि हार्श भी है. तो अगर यही ग्रिप अगर किसी एनिमल को सहनी पड़े तो व्हाट विल हैपन? इट विल एलिमिनेट द लाइफ. ओके सॉरी इट विल स्नब द लाइफ ऑफ दैट क्रीचर. तो कुछ ही मिनटों में वो क्रीचर जो है वो मार देगा हॉक उसे. क्रिएशन जो है यहाँ पे क्रिएशन को यहाँ पे कैपिटलाइज किया गया है. सी हेयर कैप्स में लिखा गया है. सी क्रिएशन का सी कैप्स में है. तो यहाँ पे ये रेफ़र करता है टू गॉड ऑफ क्रिश्चियंस के गॉड को रेफ़र करता है. दैट मीन्स द हॉक्स थिंक्स दैट इट टुक ऑल द गॉड्स एफर्ट टू क्रिएट इट. तो ये समझता है टुक द होल ऑफ क्रिएशन कि जो सारी एक तरह से कायनात है उसने अपनी पूरा एफर्ट लगाया और
ये खूबसूरत पक्षी जो है उसे लाया गया इस दुनिया में। बट नेक्स्ट लाइन सेज, अगर ये चीज़ हम एनालाइज करें तो हमें ये क्या पता चलता है कि एक तरह के उसमें एरोगेंस ही रिफ्लेक्ट हो रहा है। ओके, सो अगर हम बॉटम लाइन पे आ जाते हैं तो इट शोज द हॉक थिंग्स अबाउट इट सेल्फ एज मोर पावरफुल देन गॉड। नाउ आई होल्ड क्रिएशन इन माई फुट। तो पहले क्रिएशन ने सारा एफर्ट लगाया इस हॉक को बनाने में, तो ये चीज़ एरोगेंस को रिफ्लेक्ट करती है कि क्या माइंडसेट है, सोच कैसी है। टू प्रोड्यूस माई फुट माई ईच फेदर, तो हर एक फेदर को, हर एक मतलब जो उसका अंग है उसे नेचर ने तराशा है, उसे इस कुदरत ने तराशा है। और इसमें ये ऑब्वियसली जो है एक हमें ये पता चल रहा है कि हॉक जो है वो खुद को बहुत सुप्रीम समझता है। सो बॉटम लाइन में भी यही सब रिफ्लेक्ट है कि हॉक थिंक्स अबाउट इट सेल्फ एज मोर पावरफुल देन द गॉड। अब उसने एक ऐसी पोजीशन ले लिया अपनी क्रिएशन के बाद कि अब वो सुप्रीम हो चुका है गॉड से, तो स्विच हो चुकी है पोजीशंस। अब वो गॉड या नेचर के अंडर नहीं है, उसकी अपनी एक स्टैंडिंग है। नाउ हम स्टैंजा नंबर 4 पे चलेंगे। इट सेज, और फ्लाई अप and revolve it all slowly. I kill where I please because it is all mine. There is no sophistry in my body. All manners are tearing off heads. So यहाँ पे stanza 4 में revolve it all slowly. Herein revolve it all slowly का मतलब कि Hawk's arrogance has been highlighted. As it thinks it can force the creation to do what it wants. तो जो क्रिएशन है, जब ये हॉक ऊपर जाकर बैठता है वुड्स में, तो वो जब सारा एनालाइज कर रहा होता है तो एक तरह से ऐसा लगता है कि ये क्रिएशन जो है वो उसके अंडर है। ओके, और यहाँ इन लाइन से पता चल रहा है कि हॉक की एरोगेंस का रिफ्लेक्शन मिल रहा है हमें। एज इट थिंक्स इट कैन फोर्स द क्रिएशन टू डू व्हाट इट वांट्स, रिवॉल्व इट ऑल स्लोली। वो अपने ही उसका पूरा कंट्रोल है और वो जो चाहे वैसा होगा। नाउ आई किल वेयर आई प्लीज बिकॉज इट इज़ ऑल माइन। सो इट सेज, this way of speaking suggests that the hawk is confident that even though its power like जो सुप्रीमेसी है या जो पावर है वो इतने शॉकिंग वे में शोकेस की गई है कि जहाँ पे भी वो चाहेगा वो एनिमल्स को किल कर सकता है, बर्ड्स, अदर बर्ड्स या स्मॉल बर्ड्स को किल कर सकता है। तो ये उसके अंडर है सारा जो क्रिएशन है। ये हॉक क्रिएशन के अंडर नहीं बल्कि क्रिएशन उसके अंडर है। सो जहाँ पे उसे ठीक लगेगा वो वहाँ पे अपना प्रे सेलेक्ट करेगा, क्योंकि वो सारे जो है वो उसी के अंडर आती है चीज़ें। ओके, सो द हॉक थिंक्स दैट नोबडी कैन आर्ग्यू अगेंस्ट इट, सिमिलरली टू द वे इट एंड्स लाइफ ऑफ एनिमल्स एंड इट प्रे अपॉन देम। तो उसके अगेंस्ट कोई आर्ग्यू नहीं कर सकता और ये जिसे चाहे अपना शिकार बना सकता है। देयर इज़ नो सोफिस्ट्री इन माई बॉडी, कोई सोफिस्टिकेशन नहीं है। ओके,
So my manners are tearing off heads. My manners are, यहाँ पे अगर हम दो चीज़ें देखें, मैनर्स है एक, दूसरा है टीयरिंग ऑफ हेड्स। तो मैनर और चीड़ फाड़ करना दो अलग अलग चीज़ें हैं। मैनर तो हो गया आप सोफिस्टिकेटेड हैं, आपको तमीज़ है किसी चीज़ को करने की, राइट। यू हैव गॉट मैनर्स, एटिकेट्स। बट टीयरिंग ऑफ हेड्स क्या वो मैनरिज्म में आता है किसी जानवर का या बर्ड का? नहीं, दैट कम्स अंडर atrocities on creatures, violence. ओके, सो ये बहुत ही ज़्यादा ग्रॉस्टिक्यू काइंड ऑफ सिचुएशन होती है जब ये प्रे को मारते हैं। तो एक तरह का जक्स्टापोज किया गया है दो चीज़ों को, एक है पोलाइटनेस और दूसरी है वॉयलेंस। तो ये चीज़ें अल्टीमेटली हॉक को कैसे प्रेजेंट कर रही हैं, एक डिक्टेटर के तौर पे, कि जो भी हॉक करेगा वो उसकी मर्ज़ी है। अब बेसिकली ये कुछ सिंबॉलिक वे में भी यूज़ किया जाता था। जब डिक्टेटर्स जो थे वो वो जो कहते थे वही लोगों को करना पड़ता था। तो एक तरह से डिक्टेटरशिप भी इसमें रिफ्लेक्ट की गई है। सो टीयरिंग ऑफ हेड्स मीन्स वायलेंस एंड एट्रॉसिटीज़ ऑन क्रीचर, एंड these things they don't shock the hawk. हॉक के लिए कोई ख़ास शॉकिंग चीज़ नहीं है, उसके लिए डेली उसने इस तरह से प्रे कैच करने होते हैं। सो आई जस्ट शो यू अ क्लिप वेरी क्विकली, विल जस्ट एनालाइज द क्लिप। आप क्लिप में देखिए कि कैसे हॉक जो है वो प्रे को कैच कर रहा है, कैसे उसे जो बॉयंसी है एयर की, और कैसे वो वुड्स पे बैठ के किस तरह से वो बैठा है, किस तरह से वो देख रहा है, और अल्टीमेटली कैसे वो अपने प्रे को जो है वो इन्जॉय करता है। जो कि एक वॉयलेंट एक्ट है, उसे कैसे वो इन्जॉय करता है। To hunting, most hawks like flying solo, except for the Harris's hawk. These desert raptors love being part of a crowd, especially when they move in for the kill. First, a scout takes the high ground, scanning the landscape with vision thought to be 8 times better than a human's. Then it's time to invite the relatives over for dinner. The first hawk spots the quarry, a jackrabbit. It won't be easy to catch. These hares wrote the book on evasive action. They can run as fast as 40 miles an hour and leap 10 feet. But it may take more than that to escape from the wolf pack of the air. The first hawk flushes the jackrabbit while the others watch for the getaway. So when the rabbit instinctively zigzags away from one predator, it runs straight into the talons of another. See here, किस तरह से उसने कैच किया है And the प्रे को। whole family gets to share in the spoils, though there's always a little sibling rivalry. But the family that prays together will probably stay together, so long as they watch out for cactus thorns. सो किस तरह से जो हॉक है उसने अपनी पोजीशनिंग की, राइट। किस तरह से उसने किल किया प्रे को, उसका परफेक्शन था उसमें, परफेक्ट किल्स, राइट। उसको कोई भी गलती नहीं थी, एकदम से उसने जो है एक परफेक्ट प्लान से वो स्ट्रेटजाइज किया सब कुछ। नाउ सो इट वाज इंस्पेक्टिंग इट, एक इंस्पेक्शन वाला जो है नज़रिया था हॉक का। प्रॉपर्ली उसने पहले इंस्पेक्ट किया जैक रैबिट को, फिर उसने उसे अटैक किया, राइट। सो हियर इन लाइक
जिस तरह से वो सुप्रीमेसी के साथ बैठता है अपनी वो वुड्स में बैठता है, तो वो एक सुप्रीमेसी दिखती है. नाउ इट ऑल्सो सेज दैट द प्लेजर इट ड्राइव्स बाय किलिंग एनिमल्स. तो किस तरह से जो दो सिबलिंग्स हैं, मतलब दोनों जिस क्लिप में से उन्हें सिबलिंग्स कहा गया है, तो ये जो दोनों हॉक्स हैं वो प्लेजर लेते हैं उसे मारने में, उसे खाने में, एक इंजॉयमेंट डिराइव करते हैं, जो कि एक एक्ट ऑफ वॉयलेंस है. सो आई होप इट्स क्लियर. We will do the rest of the paragraphs later on.